Praise the Lord, Father's Care family. It's so great to have you join us here this morning on Father's Care online service. So we have an awesome service prepared for you today, but before we get into it, let's say the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. We have an awesome service prepared for you this morning with life-changing word. So just before we get into it, let's give God our worship and our every praise. A warm welcome from Father's Care Church, and we're excited to have you join our service this week. Wherever you are, we hope you're going to be touched by the service, by the word, and by the praises. So let's clap and let's sing as one congregation, as one choir. Oh, yes, Lord, we sing in your name. जिस नाम है मुक्ति, जिस नाम है शांति, जिस नाम है शांति देता वो नाम चंगाई, जिस नाम है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम we sing सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शराबों से छुड़ाता वो नाम है जो आंगन को वो रोशनी भी है देता, जिस नाम है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 जिस नाम है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम है बंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Yes, Lord, we thank you. We close our eyes as we enter worship. Lord, that it may be you and me, that we may have that connection, Lord. Yes, Lord, we pray in your name.
Yes, Lord. Let's enter that space wherever we are watching this. Yes, Lord. Fear to say, oh, I could put aside. Fear to say, to find another day. Teri महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. फिर से वो आग बरसा दे. फिर से तूफान आने दे. तेरी मेरी माँ से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. हाँ पवित्र आत्मा, 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 हाँ पवित्र आत्मा. Yes, Lord, we sing. Benedetto Usahawa ko chule har ek dil ko tera darshan hame mile. Karte hai प्रार्थना तुझसे. Benedetto Usahawa ko chule har ek dil ko tera darshan hame mile. करते हैं प्रार्थना तुझसे. तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. We sing. हाँ पवित्र आत्मा, 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 हाँ पवित्र आत्मा. Yes, Lord, we sing. तू बदल दे मेरी मन को, दे आशीष इस जीवन को. तेरी करुणा हम पे बरसे. अपने मार्ग पे चला हमको. तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष
इस जीवन को तेरे करना हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, we sing हाँ पवित्र आत्मा, we lift up our hands, हाँ पवित्र आत्मा, I'll sing at the top of my voice, the आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, we sing हाँ पवित्र आत्मा, 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 ओ हाँ पवित्र आत्मा, oh Lord. Father Lord, we sing your praises, and we know that you are the King above all kings, Lord. For wherever you are, Lord, you are mighty to save. You are mighty to save, my Father, Lord. Oh Lord, we feel your presence in this place. Wherever your people are watching, Lord, they come waiting, Lord, to seek your presence, to seek a connection with Jesus Christ, Lord, because you are the King above all kings, and you are mighty to save. Well, everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Oh Lord, we sing, Savior, we can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh Lord, we worship you and we sing your praise. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender, Lord, we sing. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever.
rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. And Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. And shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Singing, shine your light and let the whole world see. I'm singing for the glory of the risen King. Singing, shine your light and let the whole world see. I'm singing for the glory of the risen King. One more time we'll sing. Jesus, shine your light and let the whole world sing. I'm singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. And Savior, we can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. And shine your light and let the whole world see. I'm singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. I'm singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world sing. I'm singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world sing. I'm singing for the glory of the risen King. Oh, thank you, Lord, for you are holy, we sing. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you and worship you. Hear our prayer, O Lord God
Come bless our land as we seek you and worship you. Praise the good Lord. हम सभी को स्वागत करते हैं आज इस समय परमेश्वर के भवन में, और जो लोग बाहर से जुड़ते हैं आप लोग को भी खास स्वागत है। आज जो है परमेश्वर का वचन, उसको हम देखेंगे नंबर्स की किताब 13 अध्याय से लेकर पहला पद से लेकर 3 तक। इसमें कहता है इस प्रकार, नंबर्स 13 verses 1 to verses 3। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। And the Lord spoke to Moses saying, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their fathers you shall send a man, everyone a leader among them. So Moses sent them from the wilderness of Paran according to the command of the Lord, all of them men who were heads of the children of Israel. Let's bow our head in prayer. Father, we say thank you. This is your word. Your servant is standing before your throne, Lord. I pray, God, that this word will touch many lives around the globe. Many lives will be touched, oh Lord. You will talk to them individually and collectively this very moment. Say thank you, Lord. I bow before you to give you all the glory and honor. In Jesus' matchless name, I pray and ask. Amen. परमेश्वर का वचन इसमें कहता है गलतियों की किताब में कि परमेश्वर ने मूसा नबी से बातें की। वर्स 1 में कहता है, Lord spoke to Moses. परमेश्वर मानव जाति से बातें करता है, और जो वचन है परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ जो वचन है, धर्मशास्त्र कहता है Isaiah 55:11 में, My word that goes forth from my mouth, it shall not return to me void. बोले जो बात मेरे मुंह से निकलता है वो वापस कभी खाली नहीं आता। Isaiah 55:11 में कहता है। और Hebrews 4:12 में कहता है कि My word which is living and powerful, sharper than double-edged sword. Bible says, piercing even to the division of soul and spirit. धर्मशास्त्र जो है कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, प्रबल है और 2 धार तलवार से भी ज्यादा चोक है। वो वचन परमेश्वर अपने ज़बान से कहता है मूसा नबी से कि देखो, जो वादा मैंने तुम्हारे पुरखों से किया था, मैं उस वादा को निभाऊंगा, और तुम अपने 12 गोत्र में से, यानी कि 12 ट्राइब्स में से एक एक अगुआ को चुनो, एक एक प्रधान को चुनो, एक एक लीडर्स को चुनो, जो ये 12 गोत्र के अगुआ लोग हैं, जिनमें वो काबिलियत है, जिनमें वो हौसला है, जिसमें वो दम है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसके आधार पे हम चल सकें। बाइबल कहता है कि परमेश्वर कहता है कि हिब्रूज 13:8 में, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानी युग तक एक सा है। जीसस इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। आज जहां से भी आप इस वचन को सुनते हो, इस बात को जान ले और मान ले कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन वापस कभी खाली नहीं आएगा। जो आता है तुम्हारे ओर, जो तुम्हारे भाग में गिरता है परमेश्वर का वचन, वो धैर्यधारी होगा, वो पूरा होगा।
धर्मशास्त्र कहता है और आगे कि मूसा नबी ने 12 गोत्र में से 12 लोगों को, प्रधान लोग को, लीडर्स को चुना। और ये नौजवान जो थे, ये हट्टे खट्टे, ये मजबूत लोग जो परमेश्वर को जानते थे, ये वो लोग थे जब लाल समुद्र 2 भाग में हुआ। इन तमाम लोगों के सामने परमेश्वर बहुत से अद्भुत और आश्चर्य कामों को किया। आज उस परमेश्वर की बात हम करते हैं जिस परमेश्वर को तूने अपनाया। और शायद तुम सुना भी होगा कि यह परमेश्वर कैसा अद्भुत और आश्चर्य कामों को तुम्हारे जीवन में किया, तुम्हारे घरों में किया, तुम्हारे घराने में किया, तुम्हारे बच्चों के बीच में किया, तुम्हारे पति और पत्नी के बीच में किया, तुम्हारे गांव में किया, तुम्हारे देश में किया। वो परमेश्वर के बात आज हम करते हैं। और बाइबल कहता है कि मूसा नबी ने इन लोगों को चुना और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, क्योंकि प्रभु ने कहा वर्स 2 में, आई एम गिविंग टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, ये जो जमीन है कैनान देश, ये जो प्रॉमिस लैंड है, ये मैं तुझे दूंगा, ये मेरा वादा है। और इस समय मैं कहना चाहता हूं कि आज जहां भी हम हैं, इस बात को मान ले कि परमेश्वर हमें अच्छी चीज देगा। बाइबल कहता है वर्स 3 में, so Moses sent them from the wilderness of Paran according to the command of the Lord, all of them men who were heads of the children of Israel. जिस घड़ी ये काम होता है, इस समय बाइबल कहता है कि मूसा नबी के साथ हजारों सैकड़ों लोग जो साथ में है, इस समय एक वीरान जगह यानी कि डेजर्ट में ये लोग ठहरे हुए हैं। डेजर्ट का जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसमें कोई खुशहाली नहीं आती। डेजर्ट एक ऐसा जगह है जहां पर तुम जो भी कुछ बोते हो वो उगता नहीं है। इंसान कामयाब नहीं होता है। हर एक के मन में निराशा के सिवाय और कुछ नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, प्यारे लोग, आज जो माहौल है सारी दुनिया की, जिस माहौल में आज हम सब हैं, फंसे हुए हैं, ये जो वायरस चल रहा है, एक मातम की तरह छाया हुआ है। हर एक के घरों में, हर एक के दिलों में परेशानी के सिवाय कुछ नहीं है, दुख के सिवा कुछ नहीं है। आने वाला कल के मालूम नहीं किस तरह से ये दिन आएगा। आने वाला जो समय है वो हमें पता नहीं कि ये समय कैसा होगा। हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे आने वाला पीढ़ी के भविष्य, इसमें हमें कोई पता नहीं किसी को। सुबह होता है, शाम हो जाती है, हजारों से हजारों लोग, मिलियंस ऑफ लोग, पीपल आज लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। आने वाला हफ्ता के कमाई के कोई भरोसा नहीं, यहां तक कि उनका जीवन का, उनके जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज है, कल है या नहीं पता ही नहीं। ये जिंदगी, ये जीवन, ये समय जो मानव जाति आज गुजर रहा है, वो डेजर्ट से कोई कम नहीं है। ये उस बंजर जमीन से कोई कम नहीं है। वो डेजर्ट से कोई कम नहीं है। आज का समय, आज का माहौल, आज का जो दिन है, सारी दुनिया के ऊपर ये छाया हुआ है। और इसके बीच में परमेश्वर कहता है अपने जुबान से, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा,
ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा. I will never leave you nor forsake you. और परमेश्वर कहता है कि आज ऐसा ही वचन, यही वचन परमेश्वर आपसे कहता है. जितना भी लोग सुनते हो, आपसे प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हारे साथ ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा. हालेलुया. क्योंकि मेरा वचन जो है, मेरा मुंह से निकला हुआ वचन वापस कभी खाली नहीं आता. परमेश्वर के वचन कहता है, धरती आसमान के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दी गई, एक ही नाम दिया गया, जिस नाम के द्वारा तुम मुक्ति को पा सकते हो, जिस नाम के द्वारा तुम उद्धार को पा सकते हो, वो है प्रभु यीशु नाम. ये जो घड़ी है, ये कठिन समय है हर एक के लिए. ये कठिन समय में, इस समय के बीच में प्रभु यीशु अपना वचन से तुम्हें उत्साहित करता है आज, कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे घराने में परमेश्वर का पवित्र और बहुमूल्य वचन तुम तक पहुंचे, तुम्हारे हृदय तक पहुंचे, ताकि तुम इस बात को जान लो कि वो परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं, वो परमेश्वर नंबर्स 23:19 में कहा, I'm not a man that I should lie. He's saying to Moses, I'm not a man that I should lie, nor the son of man that I should repent. यही बात परमेश्वर आज तुमसे कहता है कि मैं इंसान नहीं कि झूठ बोलूं. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है और सच है और तुम्हारे बारे में, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम किया है. द बाइबल सेज कि मूसा नबी ने उस विल्डरनेस में से, बंजर जगह से, डेजर्ट से विश्वास करके परमेश्वर को, इन लोगों को तैयार करके 12 लोग को, एक एक गोत्र से एक एक अगुआ को चुना, एक एक ट्राइब से. आउट ऑफ 12 ट्राइब्स he picked the finest leaders of the tribe. वो ट्राइब लीडर्स है जो सब कुछ जानता है परमेश्वर के बारे में. उन लोगों से कुछ छिपा नहीं है. We'll go to verse 23. जब ये लोग पहुंचे उस जमीन को स्पाई करने के लिए, देखने के लिए, जब वहां पर पहुंचा तो बाइबल कहता है verse 23 में, then they came to the valley of Eshcol, and there cut down a branch with one cluster of grapes. They carried it between 2 of them on a pole. They also brought some of the pomegranate and figs. बाइबल कहता है कि जब उस जमीन पर अपना पांव रखा, उस जमीन के दहलीज पे जब ये लोग अपने कदम को बढ़ाए और उसने देखा कि वो ग्रेप्स, अंगूर, उसके जो एक एक गोद यानी कि एक एक क्लस्टर जो है, वो एक आदमी उठाने के काबिल नहीं है, इतना बड़ा है. क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने कहा, जो मैं तुम्हें दूंगा, मैं वो जमीन को तुम्हें दूंगा जिस जमीन पर मध और दूध बहता है. God promised his people. God promised our forefathers, the land that I'm going to give you will flow with milk and honey. Jesus said, I have come to give you life and life in abundance. Nothing less. जब प्रभु कुछ वादा करता है, जब प्रभु कुछ वादा किया हमें देने के लिए, वो हमेशा अच्छे से अच्छा होता है. जो भी कुछ परमेश्वर देता है वो अच्छे से अच्छा होता है. The Bible says, James 1:17 में, every good and perfect gift comes from above.
सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य गिफ्ट परमेश्वर की ओर से उनके बच्चों के लिए वो देता है. He knows how to give the best gift to his people. He never compromises in that. If he said it, he will do it. When the people got together, came to the land of Canaan, जब उस भूमि पर पहुंचा, तब उन लोगों के दिमाग खुल गया कि देखो, इस जमीन में वाकई जो कहा गया वही है ये जमीन जिसमें दूध और मध बहता है. यहां के अंगूर जब इतना बड़ा है, ये कितना फर्टाइल, कितना सुंदर और कितना मजबूत जमीन है. और ये जमीन परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखा है. प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनें, this land that they step onto truly flows with milk and honey. Our God is so good. He's so pleased with his people. He said, in the midst of all this, what you're going through, I'm going to give you the very best. I'm going to give you things which you never even thought of. Because Bible says, Ephesians 3:20, He is able to do exceedingly, abundantly, above all that you think or ask, according to the power that works inside of you. परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे मांगने से कई ज्यादा मैं तुझे दे सकता हूं. That's how beautiful this land is, which is for his people. They are the ones who are going to inherit. यही वो जमीन है जिसको वो अपनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन बच्चों के प्रार्थना को सुना और परमेश्वर वादा किया. अपने वादा को वो निभाना जानता है. His promise, he knows how to honor his promises. He will never turn back from his word. प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है, धरती आसमान टल जाए मगर मेरा मुंह से निकला हुआ वचन वापस खाली नहीं आएगा, ये पूरा होगा. The Bible says in verse 25, they returned from spying out the land after 40 days. 40 दिन के बाद ये वापस अब मूसा नबी के पास जाता है. ये 12 गोत्र के 12 लोग, 12 जो लीडर्स थे. Now these were the leaders, fine leaders. ये वो लीडर्स थे जो परमेश्वर के हर एक अद्भुत कार्य को देखा. विल्डरनेस में लोग ने देखा 40 साल. अब 40 दिन अपना प्रॉमिस लैंड देखने के बाद वापस लौटता है उस खबर को लेकर कि ये जमीन कैसा है, कितना सुंदर जगह है जो परमेश्वर हमें देने वाला है. Bible says, verse 26, now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness. ये वापस लौट के आता है 40 दिन के बाद. और वर्स 27 मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं. इसमें लिखा है, then they told Moses and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. वहां के फल, वहां के हर एक फल को रखा सामने और कहा मूसा से कि हे मूसा नबी, जिस जगह देखने के लिए तुमने हमें भेजा, जो जगह हमारे पुरखों को परमेश्वर ने देने के वादा किया, उस जगह पर हम गए.
और उस जगह को अच्छी तरह से 40 दिन में बहुत अच्छी तरह से हमने उस जमीन को हर एक जगह पर जाकर देखा। और जब हम देखा वहां का फल, बोले ट्रूली दूध और मध भय है इस जगह पर। इतना अबंडेंस में सब कुछ है इंसान के लिए, किसी चीज की कमी और घटी नहीं है। तुम जानते हो परमेश्वर के दरबार में किसी चीज की कमी घटी नहीं है। भले आज हम पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं, भले आज हम इस कठिन समय से गुजर रहे हैं, भले आज हम अपनी जिंदगी में कई एक लोग के आज हिम्मत हार रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के भंडार में किसी चीज की कमी और घटी नहीं है। अगर आज तुम भोजन के पीछे है तो परमेश्वर के पास तुम्हें देने के लिए हद से ज्यादा है। अगर आज तुम अकेलापन महसूस करते हो तो परमेश्वर के प्रेम इतना गहरा है कि तुम्हें अपने प्रेम से भर देगा। बाइबल कहता है वर्स 28 में, इतने अच्छे बात करने के बाद, इतने सुंदर बात करने के बाद, वो जमीन जो जमीन परमेश्वर ने वादा किया, वो जगह जो जगह परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है, उन लोगों के बीच में से जब वो वापस आता है तो वर्स 28 में बहुत कुछ बदल जाता है। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ थे कल तक, जो परमेश्वर के हर एक अद्भुत कार्य को देखा, जिन लोगों के आंख से किसी चीज छिपा नहीं आज तक, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा उन लोगों ने, कई एक चमत्कारों को देखा उन्होंने। बाइबल कहता है कि वर्स 28 जब हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत भारी बदलाव आता है। इसमें कहता है nevertheless the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large, moreover we saw the descendants of Anak. इन लोगों ने मिलकर कहा, इसमें से 12 लोग में से 10 लोग, 10 of them, उन लोगों ने कहा कि जो जमीन हमने देखा वाकई बहुत बढ़िया है, वाकई मध और दूध बहता है, लेकिन जो लोग उसको कब्जा में रखा है वो हम लोगों से बहुत ताकतवर है, वो हम लोगों से बहुत बलवान है, बहुत हिम्मत वाला लोग है। उन लोगों के जो सिटीज है, जो बिल्डिंग्स है, इमारतें है, जो वॉल है, दीवार है, वो बहुत बड़ी है। कौन कहता है? ये 10 लोग, ये 12 में से 12 गोत्र के एक एक लीडर में से 10 लोग, ये वो 10 लोग हैं जो परमेश्वर के हर एक अद्भुत कार्य को देखा है। और ये 10 लोग कहते हैं वे लोग जो है वो बहुत बड़े हैं, वो हम लोग से बहुत ऊंचा है, लंबा है। आज जो भी समस्या से तुम गुजरते हो, आज जो भी समस्या से तुम गुजरते हो, क्या वो समस्या तुम्हारा परमेश्वर से बड़ा है? जिस दुख के बादल के बीच में तुम खड़ा है आज, क्या वो बादल तुम्हारे परमेश्वर से ज्यादा अंधियारा है?
जो कठिन समय में से तुम गुजरता है, क्या वो समय जो परमेश्वर ने उस समय को बनाया, क्या वो बनाने वाले से वो समय बड़ा है? कौन सा समय को तुम देखते हो? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं. How do you see your God? How on earth do you see your God? How do you see the God of Abraham, Isaac, and Jacob? How do you see him today? This very moment, ask your inner self, how do you see this God? The God who created you in his image and in his likeness. The God who said, I knew you before you entered into your mother's womb. The God who said, I knew you before you entered into your mother's womb. I knew you before you came to this earth. The one who said, I know the end from the beginning. The same God is asking, how do you see your God today? In the midst of this turmoil, the whole world is suffering. To many, there is no way out. But the God of Abraham, the God of Isaac, Jacob, is asking you this question. How do you see this God? तुम कैसे इसको देखते हो? तुम्हारा पहचान क्या है इस परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने तुम्हें बनाया अपने स्वरूप में, जो परमेश्वर तुम्हें हर समय तुम्हारे सामने अद्भुत और आश्चर्य काम को किया, वो परमेश्वर जो पानी पर चलकर दिखलाया, वो परमेश्वर जो लंगड़े को चलाया, वो परमेश्वर जो अंधे के आंख दिया, वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिलाया, वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग किया, तुम्हारे लिए ये परमेश्वर क्या है? कैसे तुम इसको देखते हो इस परमेश्वर? How do you see this God? The God who created the universe. The God who creates universe after universe. The God who continuously creates because he's a creator. How do you see this God? God of Abraham, Isaac, and Jacob. The Bible says, verse 30, then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome. Out of 12, Caleb stands up. बहुत देर से सुनता है 10 लोग की आवाज. कल तक जो परमेश्वर की महिमा और जय जयकार करता रहा, और आज वे कहते हैं कि ये परमेश्वर, ये जो लोग यहां पर है, ये हम लोग से बहुत बड़ा है, हम इस जगह को हासिल नहीं कर पाएंगे. ऐसे कितना लोग हैं आप लोग? आप में से कितना लोग हैं जो परमेश्वर बड़े से बड़े चीज को लाकर तुम्हारे सामने रखता है और तुम कहते हो कि ये हो नहीं सकता? उस परमेश्वर के हृदय में क्या बीतता होगा? क्योंकि बाइबल कहता है, the one in me is greater than the one who is in the world. क्योंकि कैलब ने खड़ा हुआ और कहा, the one in me is greater
than the one who's in the world. The one in me is greater than the one who's in that land. We are well able to go and take it. We can take possession of that land. It is ours because our God promised us. Our God gave it to us. Bible says, Matthew 7:7, ask, it shall be given. Seek, you will find. Knock, and the doors will be open for you. By faith, when you ask, my Lord will supply all your needs. Bible says. परमेश्वर के वचन कहता है, verse 31 में, but the man who had gone up with him said, we are not able to go. जो साथी लोग थे, जो साथ में थे, वह कहता है कि हम लोग, we are not able to do it. Verse 32, and they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants of Anak. We were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. ये 10 लोग खड़ा होकर बोलता है कि जहां पर हम गए, जिस जमीन पर अपने पांव को रखा, जिस जमीन में दूध और मध बहता है, जिस जमीन में के जो फल है वो इतना भारी भारी फल है, इतना जो हम कभी देखा नहीं, वो हमें देखने के मिला। लेकिन इन लोगों के सामने हम लोग जो है वो टिड्डियां के समान है। We are like grasshoppers. The people who've been serving God all their years, all these many years they've been serving the Lord. Today they're saying themselves that we are nothing, we are like grasshoppers. My question to you, if you think like a grasshopper, in the midst of this pandemic, you will become one of those grasshoppers. If you think like it, you will become. अगर तुम अपने आप को सोचते हो कि हम उसके काबिल नहीं हैं, हम वो हासिल नहीं कर सकते, हम उस लायक नहीं है, अपने आप को जब तुम कमजोर समझते हो, अपना परमेश्वर को तुम भूल गया, अपना परमेश्वर के वचन को भूल गया, जिसने अपने वचन में कहा, I will go before you and make every crooked path straight. मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं और हर एक उबड़ खाबड़ रास्ते को चौरास बनाता है. Isaiah 45 verse 2. The one who said, call unto me and I will answer you. The one who promised I'll never leave you. The one who said, I am that I am. The one who said, I've created you. The one who said, I know the end from the beginning. अगर तुम उसको भूल गया, उसके वचन को भूल गया, तब तुम अपने आप को एक ग्रास होपा से कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सकते. If you believe he is able to do exceedingly and abundantly above that you think or ask, the Bible says the Spirit that raised Jesus from the dead dwells inside of you. भले जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु को मुर्दा से जिलाया, वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है. जो तुम मांगते हो विश्वास के साथ, तुम्हारे लिए हो जाएगा. ये मत भूलो कि वही परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग किया और ये लोग खड़े होकर कहता है कि नहीं हो सकता. जो परमेश्वर तुम्हें बनाया उसके तुम तौहीन करते हो.
जिस परमेश्वर के नाम लेकर जय जयकार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हो, उसके बदनामी करते हो, उसके बनाई हुई जमीन को, उसके दी हुई हर एक चीजों को तुम बदनाम और अपमान करते हो अगर हम कहते हैं कि नहीं हो सकता। ये 10 लोग मिलकर कहता है कि नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूं अंत में डिट्रोनमी 1 और 36 और 38 में बाइबल कहता है 12 लोग के बीच में से सिर्फ 2 ही लोग, 2 ही अगुआ, 2 ही प्रधान, 2 ही लीडर्स उस प्रॉमिस लैंड में अपना पांव को रखा, अपने घर, अपने घराने के साथ। हालेलुया प्रेज द गुड लॉर्ड। क्योंकि ये दोनों परमेश्वर की महिमा और उसकी बड़ाई करते रहे। बाकी 10 लोग उस बुराई को देखा जिस बुराई में ये खुद उस बुराई में फंस गए। ये 10 के घराना उस परमेश्वर के पवित्र जमीन पर कदम नहीं रखा, बाइबल कहता है। आज मैं बताना चाहता हूं जहां भी तुम है, जैसे भी है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक कठिन समय से जो हम गुजरते हैं, हर एक लोग जो परमेश्वर के नाम से खड़े होते आज मेरे साथ, इस कठिन समय को हम पार करेंगे। चाहे जितना भी मुश्किल से तुम गुजरते होगे, मैं भी इस बात को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास किसी इंसान पर नहीं, किसी सरकार पर नहीं, किसी पड़ोसी पर नहीं, किसी आमदनी पर नहीं, तुम्हारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु के पास रहे। जब तक तुम्हारा ईमान उसके साथ है, जब तक उसका वचन तुम्हारे हृदय में है, तब तक तुम परमेश्वर की अद्भुत और आश्चर्य कामों को देखोगे अपने जीवन में। इस समय मैं चाहता हूं कि आपके लिए प्रार्थना करें। जहां भी आप हैं, अपने हाथों को उठाएं, कम से कम एक हाथ, दाहिने हाथ, एक साथ में हम जुड़ जाए, एक विश्वास में हम जुड़ जाए, एक मन होकर और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपने आंखों को बंद कर लें और विश्वास करें कि हे महान परमेश्वर, हे दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारे पवित्र चरणों में हम आते प्रभु। हर एक लोग को लेकर जो आज हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु, हर एक के मनों को तू जानता है। ये कठिन समय में प्रभु यीशु, तू हमारा वो चट्टान है। हे परमेश्वर, तू वो चट्टान है जो कोई हिला नहीं सकता। हे परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते तुझे और यही विश्वास करते प्रभु कि तुम्हारे लोग प्रबल होंगे, तुम्हारे लोगों का विजेता होगा प्रभु। इन लोगों का घर और घराने समेत तुम्हारे पवित्र लहू से हम ढाकते हैं, और जहां पर तुम्हारा लहू है प्रभु यीशु, शैतान वार नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग सब तुम्हारे छत्र छाया के नीचे पाए जाए प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, और हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन। God bless you, bless each and every one of you. Thank you. Thank you so much for joining us here once again. In 2021, we've declared that this is the year that the Word manifests into flesh. So it is our prayer that today that the Word has ignited a fire down in your spirit and inspired you to speak the Word over your life. Now let us say the declaration for 2021 together. 2021 is my year of Word becoming flesh.
By faith, I am living by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Your word is my counsel and wisdom, and your word gives me understanding. This year, I am treasuring the words of your mouth more than my necessary food. Every prophetic word spoken over my life is being fulfilled in this season. Your word is a sword of the Spirit in my mouth, manifesting in signs, wonders, and miracles in and through my life. Jesus, you are the word full of grace and truth, and we are beholding your glory as your word works in our midst. In Jesus' name, amen. Amen. Isn't that amazing how we've just spoken the word from the spiritual into the physical? Now get ready for changes to come. Don't forget to like our page and subscribe to our YouTube channel, and continue to share around our Sunday services as we continue to change this world. God bless you until the next time.